Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this video is about IIFT form filling. काफी टाइम हो गया, एक महीना हो गया. I have not been able to come up with YouTube videos because GDPI course is in full swing and a lot of my time is going there along with obviously college commitments. But yes, IIFT shortlist is out. Very important call for a lot of people and the lot of queries and the questions that people have been asking me. So I thought maybe a video for this. We have Vikrant with us, who is in our course, and he'll be sharing the screen, and we'll be just running through IFT ka questions जो भी इस बार का है. I will also show you the form that I submitted during my time where I have my responses there. Again, those could have been better. Obviously, now after 2 years, I realize कि हाँ ठीक है क्या बेहतर कर सकते थे, but those were the responses which were of the best of my capability at that time. So maybe that will give you a perspective. With that, let's move on to IFT screen. So which page is this? Okay, this is your 10, 12. 10, 12 wala, just giving a bit of, perspective on this one. सारे subjects का percentage डालना है. You cannot pick best of 4 or best of 5 at all. Major subjects when they are writing. So see, दिस इज अ ट्रिक कि यार वहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट्स है आप जो लिखोगे वो वही पूछेंगे. जैसे यार आपने साइंस लिखा था, मे बी राइट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी जो भी था, ठीक है, नॉट साइंस एज सच, इट्स वेरी वास्ट. प्लस when you have written marketing here, there are a lot more subjects. So if you want to uh, take your this interview towards marketing, write a bit of more marketing subjects. Let's say मेरे बीकॉम में था मार्केटिंग मैनेजमेंट एडवर्टाइजिंग, मैंने वो सब लिंक किया था. So this is a way, but हाँ, I wouldn't say write all the subjects. The reason is because let's say in bachelor's you write all the subjects which are major. You term them as major. ये आपका चॉइस, आप किसको मेजर समझते हो. उसमें अगर आपने मान लो आपको फिनेंस बिल्कुल नहीं आता और आपने फिनेंस को मेजर में डाल दिया और फिर उन्होंने पूछना शुरू कर दिया तो वाट लग जाएगी. सो यस, take your mark sheet, see the subjects in which you are comfortable, at least 3 4, and enter them in the BBA wala column. At least 3 4, not just marketing but at least 3 4. I hope you got it. Yes. Great, let's move on. Okay, professional detail experience, there is no experience. So see, here they are not giving you a chance to edit your work experience. So as per IFT form ही रखना. If you have been paid salary in cash तो salary certificate ले लेना, that is also important. उसके अलावा अब अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स अपलोड करना है, IFT का एडमिशन सेंटर को मेल करो या कॉल करके पूछो. डोंट आस्क रैंडम पीपल ऑन द इंटरनेट. दे नो एज मच एज यू डू और दे वुड हैव आस्क्ड. तब ठीक है, वरना डोंट टेक रैंडम एडवाइस. इट्स लाइक it's a difference between where you are right now and where you will be in 3 months. So don't try to mess up here. Next page. Okay, this is important. So first, on your right you see award, achievement, extracurricular, membership, सब कुछ है. So आपने स्कूल से लेके अभी तक कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर किया है या कुछ भी अकेडमिक अवार्ड जीता है, दिस इज द प्लेस वेर यू मेंशन इट. You got a scholarship, mention it. You were sports captain, mention it. You were society का head, mention it. You won something, नहीं यहाँ पे तो चलो उसका हाँ awards लिखा है. So let's say you won a competition, mention it. Properly do. And details में भी they want bit of it. ज़्यादा मत करना. If you have a lot of it, just go on ChatGPT, say कि condense all of this in 2 lines for me. And they like ChatGPT will do that. Read that. ChatGPT का लिखा हुआ पढ़ो और अगर उसमें कुछ चेंज लगे तो उसको चेंज करके डालो, रैंडमली मत डालना. ठीक है. Again, you can input anything you want. I have put a lot of extracurriculars during my time. I'll show you my form. So you know uh, be as like comprehensive here as possible. This is your place to show कि आपके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है. Don't shy away from here. Is that fine? भैया आई थिंक देयर इज अ लिमिट ऑफ 4। आप 4 ही डाल सकते हो। आई ट्राई टू पुट मोर लेकिन वो गया नहीं, वो 4 ही गए, बस 4 एंट्रीज ही गई इसमें। वो अच्छा ठीक है. या तो फिर मैंने अपने टाइम पे, मेरे टाइम पे अगर लिमिट नहीं थी तो मैंने और डाल दी होगी, वरना मैंने भी पूरे 4 डाले थे. ठीक है. एक बार नीचे जाना. Languages known this also, since a lot of people have been giving interviews and we have 10 wonderful mentors, we have a few seats, 18 seats to be precise, to be filled for the GDPR course. So if you have calls and you're struggling with the preparation, feel free to join us and we'll take care of your preparation. That being said, let's move on to the languages known describe. ठीक है. See this question, describe in short what are your favorite areas of discussion. इस पे question definitely आ सकता है. So if you are very much confident about a certain thing, please put it here, because there are some things which we really want to discuss but that does not come through in the interview because interviewer kabhi पूछता ही नहीं है. This is your place where you can put it through. So like Vikrant has talked about exploring how technology impacts human behavior. I can ask you so many things on this, Vikrant, right? Let's say, what is the latest technology you have found which impacted human behavior? What is your take on AI impacting the students IQ? Yeah, students way of working.
ठीक है, व्हाट इज योर टेक ऑन एआई एंड कंपनीज लेइंग ऑफ पीपल? There can be endless question. What is the next new thing that we don't know of, but you know because you are interested in this? Remember, एक चीज I always say कि when you are claiming that you have habit of something or you have interest in something, a person wants you or at least expects you to know more than what a normal person would know. ठीक है? So for example, if you say that I am very interested in the life of Prime Minister Modi, और आपसे वो पूछे कि भाई ठीक है चलो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बताओ, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि आप बोलोगे यार अब तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज बोर्न इन गुजरात। भाई वो मेजोरिटी लोगों को पता है। आपको कुछ ऐसा पता होना चाहिए उनकी लाइफ के बारे में जो मोस्ट लोगों को नहीं पता हो अंटिल वो डिगिन कर रहे हैं, अंटिल उनको इंटरेस्ट हो। ठीक है। सो यहाँ पे भी आप जो भी लिखोगे उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो सोच समझ के लिखना। उसके ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना, हर फ्रेंड से प्रिपेयर करना। ठीक है। And you will be expected to know more than normal people. So if at all needed, actually go to sites, social media sites, and see what is the discussion going on in this. Go to Reddit, go to Quora, go to Instagram, and see what people are writing about this. Go to YouTube. Then you will actually get a perspective. I hope that helps. Any clarification here? नहीं भैया, बट दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, तो उसके Social बारे में आई हैव टू पुट। websites यही सब है। Instagram is a social networking website. Facebook is social networking. Reddit, Quora, Twitter, ये सब social networks ही तो है। बेसिकली दैट कि आप किस बारे में बात करते हो सोशल मीडिया पे, विच टॉपिक इज समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट। ओके। ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आपने लिख रखा है, वन एस्पेक्ट आई फाइंड पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग इज द क्रिएटिविटी दैट इंडिविजुअल्स डिस्प्ले। ये तो चैट जीपीटी लग रहा है। थोड़ा प्रॉम्प्ट दिया था, लेकिन हाँ, चैट जीपीटी है। हम्म। मैं समझ इसको फ्रेम सकते करूंगा दोबारा भी। हैं। हाँ। थ्रू मीम्स कल्चर, ठीक है। हाउएवर आई ऑफन लूज ट्रैक ऑफ टाइम। यार ये तुमसे नहीं पूछा कि तुम सोशल मीडिया कैसे यूज करते हो, तुमसे सिर्फ इतना पूछा कि व्हाट एरियाज ऑफ डिस्कशन यू लाइक। खत्म बात। ठीक है। ओके। They have not asked you again. Read the question very carefully, word by word. What are your favorite areas of discussion? Not how you use social media. कि भाई आपका टाइम जा रहा है। पहली बात तो ये, दूसरा बताना भी क्यों अगर टाइम जा रहा है। They'll think कि भाई आपको you don't have track of your time. Something that will never come back. And how do I expect you or how do I give you a knowledge that you can use to bring a company out of crisis or grow it? जिसको खुद के टाइम का ट्रैक नहीं है वो कंपनी का क्या ही अच्छा कर लेगा। So don't put those red flags there. एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू गिव इट अ कॉन्टेक्स्ट कि एल्गोरिथम किस तरह से काम करती है, डेट वो स्क्रोलिंग में बदल जाता है, डेट यू डोंट कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम। ऐसे लिखो ना, द एल्गोरिथम हैज बीन डिजाइन्ड इन अ वे दैट इट कंज्यूम्स द टाइम ऑफ पीपल हु आर ऑन द प्लेटफॉर्म। व्हाई डू यू नीड टू से ये मेरा टाइम जा रहा है? लास्ट लाइन में आप पढ़ोगे तो ऐसा ही कुछ लिखने की कोशिश की, बट आई विल ट्राई, मैं एडिट करूंगा इसको। हाँ आई विल वही मेक इट तो, बेटर। मैं वही बोल रहा हूँ कि खुद को बुरा मत दिखाओ भाई। ठीक है। ओके। चलो नेक्स्ट। ओके, career focus. What are the three things that you aspire in your career? So see, this will divide it into two parts. First is for freshers, second is for workers. A person with workers, if you're watching this, you already know why you really want to do an MBA, or to some extent you know कि ठीक है भाई मेरे को इसमें जाना है, मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, मेरे को हाई ग्रोथ रोल चाहिए, मेरे को चैलेंजेस चाहिए वगैरह वगैरह चाहिए। और दूसरा जो फ्रेशर है, जिसको अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं मिला है। So you both will kind of have different priorities because the person who has worked and came in, they know how it is there and what they want to make their corporate life smoother. I mean, that's always a debate, but ठीक है। So यहाँ पे जब आप थ्री थिंग्स एक्सपायर लिख रहे हो, try to research the roles or the roles in the domain that you are looking at or the domain in specific. Let's say Vikrant, you wrote marketing. Marketing में भी क्या? Marketing has a lot of things. Marketing has product management, sales, advertising, social media communication, IMC, integrated marketing communication. अब तो बहुत कुछ आ रहा है, अब तो content creation वगैरह सब आ रहा है। So what is the thing that you aspire to go on in your career with first? Second, what kind of career do you want? Want you wanted a challenging career? You want a stable career? ठीक है। I mean, these are just breadcrumbs that I'm giving. I'm not saying कि आपको भाई यही सब include करना है, but these are the things you can think of. Any doubt here? नहीं भैया, बट देयर इज अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर दिस, व्हिच इंडस्ट्री एंड जॉब रोल्स डू यू वांट टू एस्पायर, लास्ट क्वेश्चन इसी के बारे में, तो वी कैन बी स्पेसिफिक देयर। हाँ तब स्पेसिफिक करना ना। ठीक है। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आई ट्राई टू फ्रेम इट अराउंड कि एस्पायर करता हूँ कि टू बी लाइक मैनेजर रोल इन अ गुड फर्म। इस तरह से आई ट्राई टू फ्रेम इट, क्योंकि मेरे पास वर्क एक्स तो है नहीं जो मैं उसके अराउंड अपने आंसर को फ्रेम करूंगा। तो आई ट्राई टू बी जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के हिसाब से कि ये मैंने पढ़ा, आई बिल्ड माई बेस एंड आई एम कंटिन्यू टू कल्टिवेट माई स्किल्स। हाँ जरूर, बॉक्स। Second, give instances of situations where you used an innovative or created
creative method to solve a problem. आई रिमेंबर इसमें मैंने एक कॉम्पिटिशन का लिखा था। आई कॉम्पिटिशन में हम लोग को शायद वो दिया था, स्टेपलर पिन्स दिया था, और हम लोग को बोला था इससे कुछ प्रोडक्ट बनाओ। तो वी पिच कि हम लोग ये स्टेपलर पिन्स को जोड़ जोड़ के एक पाइप बना देंगे जो कभी टूट ही नहीं सकता, जैसे प्लास्टिक पाइप टूट जाता है। दिस कैन नॉट बी ब्रोकन बिकॉज बहुत ज्यादा वो तगड़ा हो जाता है व्हेन इट्स टुगेदर, यू कैन नॉट ब्रेक इट फ्रॉम बिटवीन, राइट? सो वी पिच्ड इट लाइक दिस। एंड अगेन आई मीन उस समय तो चलो अंडर ग्रेजुएट में थे, तो इतना ज्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं ना, इतना ज्यादा आई वुडंट से दिमाग चल रहा था तब। बट द फैक्ट इज आई यूज ओनली माई केस फॉर्म थिंग प्रॉब्ली इन दिस आंसर। इफ इट वॉज इन माई आईएफटी फॉर्म, मैंने कोई केस फॉर्म का ही बताया हुआ कि हमें कुछ एक प्रॉब्लम दिया गया जिसको हमें क्रिएटिवली सॉल्व करना था। नो, दिस कैन बी फ्रॉम योर वर्क एज वेल, बट हाउ डू यू डिफाइन क्रिएटिव और इनोवेटिव इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना? In our case, it was innovative. My case, it was innovative or creative because I had to do a role play. I had to come up with a product thinking and something. So it's innovative at that very instance. But in WorkX, I'm not sure how do you define कि आप innovative कैसे जा रहे हो. So something that is not being used in the company right now, but that helped. और let's say आजकल AI चल रहा है, तो I am sure बहुत लोग AI का एग्जांपल लेंगे कि कैसे, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना यूट्यूब को पूरा ऑटोमेट करने का AI से. So this is not mainstream as of now. But people are doing it, but it's not mainstream. So something that is not mainstream, but you have done, could be here. I mean, we can obviously, let's say Vikrant, your farmer is father is a farmer, right? So if you have helped him in like this crop wala thing in a way that is not being done by him, which is not a usual way, so it's a creative or innovative way to solve a problem. I hope I was able to make myself clear here. Yes. ठीक है? And this is not only limited to your career, याद रखना, मतलब as in you don't have to just think internship में कैसे किया, ये it's life in general. आपने कहीं भी creatively solve किया लिख दो. lot of people say कि यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, सब सिंपल काम किया था, जोर डालो, सोचो लाइफ में ऐसा कभी ना एक टाइम आया होगा जब आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, बोला होगा तो यार मेरे अंदर तो बहुत दिमाग है, तब वो चीज लिख दो यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। ठीक है. What does ambition mean to you? Describe instances of step you have taken to fulfill your ambition. अब ambition mean to you, it's a very personal thing. तो वो आप सोचना. But what steps have you taken? One thing, I mean, what steps भी is a very personal thing. I don't think इस क्वेश्चन में मैं स्पेसिफिकली कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ. बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, ट्राई नॉट टू पुट कैट एज योर एम्बिशन, ठीक है? मे बी टेल दैट एम्बिशन वॉज गेटिंग इनटू अ टॉप, वो भी नीचे टॉप टियर एमबीए कॉलेज होने का एम्बिशन हो सकता है फॉर पीपल हु डू नॉट हैव रियल एक्सपोजर, आई वुड से. बट लेट्स से फॉर समवन लाइक मी हु वाज फ्रॉम अ गुड कॉलेज जहाँ पे लोगों को बहुत करियर के बारे में पता है, ठीक है? मैं अगर वहां बोलूँ कि यार मेरे को टॉप टियर एमबीए में जाना है, तो मेरे कॉलेज के 80% लोग बोल रहे हैं नॉट गुड, वेरी डिफरेंट थिंग. तो वो एम्बिशन एज इन रिफ्लेक्ट, अगेन वेरी पर्सनल, बट आई डोंट नो, इट डज नॉट रियली कनेक्ट वेल. बट फॉर अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम लेट्स से विलेज जहाँ पे कोई कभी आया ही नहीं है इन सब जगहों पे, वो अगर इसको एम्बिशन बताए तो मेक सेंस. सो इफ यू आर समवन हु इज फ्रॉम अ बिट ऑफ I wouldn't say backward background, but unexposed background, and you claim that you want to get into MBA, top tier MBA, and that is your ambition, makes sense. And what steps बताओ कि वहाँ पे लाइट नहीं होता था ज़्यादा, या कंप्यूटर का एक्सेस नहीं था, आपने कैसे कोचिंग के साथ मैनेज किया, कैसे कैसे सब कुछ किया, वो आपका स्टेप्स हुआ. सो लेट्स से इन माय केस माय एम्बिशन इज टू ग्रो माय GDPI कोर्स बिजनेस. सो व्हाट स्टेप्स डिड आई टुक? मैं अपने कॉलेज के साथ मैनेज कर रहा था, मैं AI के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है? मैंने नए नए वेज ऑफ वीडियो क्रिएशन ट्राई किए, ठीक है? मैंने कुछ एक दो टूल्स खरीदे, मैंने इंटर्न्स रखे. सो दीज आर द स्टेप्स आई टुक टू रीच वेयर आई वांट टू, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन. बट माई एंड इट डज नॉट से दैट एम्बिशन शुड हैव बीन अकम्प्लिश्ड. तो जैसे मेरा एम्बिशन अभी भी है, मेरा यूट्यूब चैनल को मेरे को 100K लेके जाना है, बट आई एम एट 5K राइट नाउ, ऑलमोस्ट 5K. सो इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि यार एम्बिशन नहीं है ये तो. It is my ambition and I am taking steps towards it. You have to acknowledge that, write it very clearly where you are in this stage right now and what next could be your proper plans. But only 100 words there, so be very, specific with the choice of your words, and I think that would be able to help you. Any doubts here, Vikrant? या आई जस्ट ट्राई टू फ्रेम इट अराउंड माई लाइक एमबीए ओनली, लेकिन Mm-hmm. मैंने अपना पर्सनल लाइफ का पर्सपेक्टिव ज्यादा डाला नहीं इसमें, क्योंकि वो थोड़ा ऑफ रोड चला जाएगा. तो आई ट्राई टू मेक माई आंसर अराउंड लाइक एमबीए जर्नी, दैट व्हाट आई विल बी डूइंग नेक्स्ट एंड व्हाट्स माई लाइक अल्टीमेट करियर ऑप्शन आफ्टर एमबीए विल बी. सो आई ट्राई टू फ्रेम इट अराउंड इट. एंड जो एम्बिशंस के लिए आपके स्टेप्स है वो मैंने अपना लाइक ग्रेजुएशन एंड द एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आई डिड टू बी गुड एट समथिंग, तो उस तरह से मैंने डाल दिया अपना मार्केटिंग वगैरह का. क्या आई डिड दिस इंटर्नशिप देयर, तो इस तरह से मैंने कर दिया.
तो सी, वन थिंग दैट यू स्टार्टेड विद, इसकी मैंने अपना पर्सपेक्टिव डाला, बट वो थोड़ा ऑफ रोड जा रहा था। यार उन्होंने क्लियरली पूछा व्हाट डज एम्बिशन मीन टू यू, सो दे वांट योर पर्सपेक्टिव फर्स्ट। सेकंड, मान लो एमबीए नहीं करना होता तो क्या आप ग्रेजुएशन डिग्री नहीं करते? क्या आप बोलना चाहते हो कि आपको पता था 12 में ही आपको एमबीए करना है इसलिए आपने बीबीए लिया? मे बी नहीं, मे बी हो सकता है, हाँ, बट इट्स अ फार शॉट। सो टेल कि बीबीए में गया, एमबीए के बारे में पता चला, प्रोफाइल बिल्डिंग करनी थी, समझना था कि ये फील्ड मेरी है कि नहीं, तो मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ये सीखा, फिर मैंने डिसाइड किया, लोगों से बात हुई कि हाँ मेरे को करना है एमबीए। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैंने कोचिंग दी। अब मैं कैसे मैनेज किया कोचिंग के लिए? मान लो पैसा नहीं था, आई एम जस्ट बिल्डिंग अप हाइपोथेटिकल सिनेरियोज, यू नो द रियल चैलेंजेस। तो पैसा नहीं था तो पैसा कैसे मैनेज किया, या सेल्फ स्टडी किया, ठीक है। कुछ एक डिफिकल्टी आई हो अगर इस पूरे बीच में, तो उसको कैसे हैंडल किया, व्हाट नेक्स्ट आर यू गोइंग टू डू, एम्बिशन क्या है, उसको अगर आप क्लियरली डिफाइन करोगे तो ही आप स्टेप्स को क्लियरली डिफाइन करोगे। इफ योर एम्बिशन इज टू गेट इनटू अ टॉप टियर मैनेजमेंट कॉलेज, देन यू विल बी एबल टू टेल कि हाँ भाई क्या क्या स्टेप्स लिया। इफ योर एम्बिशन इज लेट्स से टू गेट इनटू अ मार्केटिंग रोल और टॉप टॉप जनरल मैनेजमेंट रोल, तो आपने क्या क्या स्टेप लिया, तो आपने खोजा कि हाँ एमबीए करना पड़ता है, फिर एमबीए करने के लिए क्या स्टेप्स हुआ, एंड अभी भी बाकी है ये एम्बिशन कंप्लीट करना। बट आई वुड से कीप योर एम्बिशन अ बिट लॉन्ग टर्म, डोंट कीप इट वेरी शॉर्ट टर्म। ओके। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडस्ट्री एंड जॉब रोल डू यू एस्पायर टू जॉइन? अ, ये तो यार सी, देयर टू थिंग्स है। फर्स्ट इज इफ समवन इज क्लियर, लेट्स से आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को मार्केटिंग में ही जाना है, सो इन ऑल माय इंटरव्यूज आई यूज्ड टू टेल कि मेरे को मार्केटिंग में जाना है, बोलो मेरे से मार्केटिंग का पूछते थे, मैं खुशी खुशी बताता था क्योंकि मेरे को एक्चुअली मार्केटिंग में जाना था। इंडस्ट्री में भी मैंने एफएमसीजी बोला था क्योंकि मेरे पापा का खुद का एफएमसीजी का दुकान है, तो आई वाज लाइक कि हाँ मेरे को उसके बारे में पता है, मैंने उसमें काम किया है, आई विल बी एबल टू स्पीक अबाउट इट। लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि व्हाट इंडस्ट्री और जॉब रोल you want to be into. Remember, if you write something about the industry, let's say you want to go into banking industry, they might ask you questions about banking industry to see if you have written it just for the sake of it or you really mean it or not. ठीक है, and if they catch you कि भाई नहीं ये तो बस ऐसे ही लिख दिया, that's a complete red flag. So if you're not sure of the industry, please be very clear, write that you're not sure of the industry, you want to have proper knowledge about all of it, you will explore in MBA about it, and then maybe take a call. एंड इफ यू क्लियर अबाउट डोमेन, ये लिख सकते हो कि मैं इस डोमेन में जाना चाहता हूँ, बस इस इंडस्ट्री में आई एम नॉट वेरी श्योर। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल यू आर नॉट श्योर अबाउट बोथ ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो देन अगेन बी ऑनेस्ट हियर कि आई एम नॉट वेरी श्योर वेयर आई वांट टू एंड अप इनटू, बट देन बेस्ड ऑन द स्किल्स set and interest and long term goal that I am bringing in, as of now with limited experience, I would like to get into this one. For example, मैं मेरे को हमेशा से मार्केटिंग क्लियर था, और वो मेरे को पूछते थे कि कौन सा डोमेन, तो मैं बोलता हूँ कि सर मैं हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करता था, सर विद माय लिमिटेड एक्सपीरियंस, क्योंकि यार मेरे पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं, मैंने कभी मार्केटिंग ऐसे प्रॉपर फुल फ्लेजेड किसी कॉर्पोरेट के लिए किया नहीं, तो मेरे को पता नहीं मार्केटिंग कैसा होता है, बस बाहर से बहुत अच्छा लगता है। सो सर फ्रॉम माई लिमिटेड एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू मेक अ करियर इन टू मार्केटिंग, बट एज आई एंटर इन टू MBA एंड इफ एनी अदर सब्जेक्ट्स एक्साइट्स मी मोर आई डेफिनेटली कंसिडर इट, बट फॉर नाउ हाँ मार्केटिंग, लिमिटेड एक्सपीरियंस मार्केटिंग। फिर वो लोग पूछते थे चलो क्या स्किल सेट है, तो हम क्रिएटिविटी बता दिया, प्रेजेंटेशन स्किल, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, ये सब बता दे, तो इसलिए मेरे को मार्केटिंग में, मेरे को जनरली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड एड्स देखना भी अच्छा लगता है, सो इसीलिए मार्केटिंग। बट ये भी हो सकता है यार मैंने आज तक ऑप्स ढंग से पढ़ा ही नहीं, ऑपरेशंस, कल को मैं यहाँ आऊँ, मेरे को ऑपरेशंस अच्छा लगने लगे, सो मे बी आई कैन स्विच देयर, सो आई ऑलवेज केप दैट ऑप्शन ओपन इन माई इंटरव्यूज। बट आई ऑल्सो एक्नॉलेज एट द सेम टाइम कि हाँ मेरे माइंड में एक चीज जरूर है, मेरे माइंड में मार्केटिंग जरूर है, बट आई एम ओपन टू चेंज। होप दैट वर्क्स। यस, परफेक्ट। नेक्स्ट, इज एनीथिंग एल्स? बहुत बड़ा फॉर्म है यार। What is the biggest challenges, the change that you have faced? How did you cope up with it? They're trying to see your management rates. अच्छा हाँ, management rates ही नाम है इसका। So भैया, हाँ, these questions like the third one and the fourth one, ये अभी ऐड हुए हैं, कल तक नहीं थे ये दोनों, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। so जो लोगों ने पहले सबमिट कर दिया वो। अब पता नहीं, पर ये थर्ड वन फोर्थ वन कल कल मैंने सुबह लॉगिन किया था, जब तक तो नहीं थे। आई जस्ट फ्रेम माई आंसर अराउंड दिस फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड, दिस बीच वाले दो आई डोंट नो, चलो ठीक दोबारा है, let's करना cover it पड़ेगा। fast. ठीक है, so what is the biggest challenge or change that you have faced? For a lot of people you can say अगर आपने शिफ्टिंग वगैरह, आपके पापा का रेगुलर ट्रांसफर होता है, चैलेंज है, वो भी बहुत बड़ा अडेप्टेबिलिटी का इशू है, so how you coped up with it? और let's say uh, could be anything for someone, किसी का बहुत बड़ा financial loss हो गया, how did you cope up with it? The thing that they are trying to see here is first your character building, कि आपको एक सिचुएशन से, लाइफ ने आपको एक सिचुएशन थ्रो की, did you run away from it or did you face it?
That is what they're trying to see. And if you face it, how did you face it? So it's a very personal thing that you can think of. But try not to put very very personal situations here. Keep that thing in mind कि हाँ भाई, for example breakup वगैरह, maybe your biggest challenge in life could be breakup, but is it something that I would like to discuss in an MBA interview? Probably not. So try to think something that personal is fine but is फॉर्मल एज वेल, कि ठीक है इसको डिस्कस किया जा सकता है, बिकॉज ब्रेकअप ऐसा थिंग इज वेरी पर्सनल, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो आई डोंट नो इफ इंटरव्यूअर्स विल बी फाइन रीडिंग दैट। ठीक है, आई होप दैट हेल्प्स विक्रांत। यस। Great. What type of leadership style do you have? Describe any instance. So यार ये तो बहुत ही straightforward question है, I don't know how can I help you here, but इंस्टेंस मांगा है, एक्स्ट्रा तो मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता, इंस्टेंस मांगा है। सो हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ, इट डज नॉट नेसेसरीली मीन्स कि आपने कॉलेज में कहीं किया हो या वर्क एक्स में कहीं किया हो। इट कुड बी एनीवेयर इन लाइफ। यार अगर आपके बगल में पाड़ा में दुर्गा माता का कुछ हो रहा था, आपने उसको लीड किया, तो भी वो लीडरशिप है। ठीक है, सो if not professional, try to get personal anecdote from life, but remember anything you write is something that is fine if questioned. So वो चीज को याद रखना, वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कीप इन माइंड अगेन आई एम सेइंग कि वो लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं इन सब चीज के ऊपर, इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, क्या बोलते हैं ना, mention something that won't make the situation awkward for you or the interviewer to discuss. I hope that's fine, Vikrant. यस, परफेक्टली फाइन। What is the importance of geopolitical issues and their impact on international trade? यार ये तो, I wouldn't say do GPT. I would say read a few articles, Mint, Economic Times, हिंदू वगैरह के 4-5 आर्टिकल पढ़ो, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बिल्ड करो। बट कमिंग ऑन टू द फैक्ट डिस्कस विद द रीसेंट एग्जांपल, तो हमें मुझे याद है मेरे टाइम पे ना रशिया यूक्रेन वॉर था, तो सब ने बहुत जन से डिलेमा में थे कि क्या करें, क्योंकि मोस्ट लोग रशिया यूक्रेन वॉर लिखेंगे, तो मैं अलग ऐसा क्या लिखूं। जितना मेरे को याद है मैंने शायद सेमीकंडक्टर के बारे में लिखा था कि सेमीकंडक्टर का वो हो गया था सप्लाई चेन, बट वो इट्स इनडायरेक्टली लिंक टू द वॉर ओनली। ठीक है, सो you know that is what you have to think if you're someone, if you can come up with a very relevant but different geopolitical issue, go with it। ठीक है। अभी ये रशिया यूक्रेन वाला सेम अभी ट्रम्प के साथ हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक हाँ ऑफ ट्रम्प ट्रम्प, ओनली के। हाँ बहुत लोग बोल सकते हैं ट्रम्प ने जो टैरिफ वगैरह लगाए हैं, बट थिंक ऑफ समथिंग एल्स, समथिंग दैट इज एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल, मे बी ताइवान के ऊपर जो चाइना कर रहा है, वेरी इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, ओके। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस? यार ये भी अगेन सेम, try to read a few articles on this. I have a generic answer to this, so I wouldn't say कि भाई मेरा सुनो इसमें। And if you're already from an analytics background, then it's good. If not, if you have someone who is a business analytics person or data analyst, just ask them what their daily job role is, what kind of insights they find out, and उसके basis पे इस आंसर को लिखो। ठीक है। भैया मे बी मैंने बीए भी सेलेक्ट किया था फॉर्म में, तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चंस Okay, इज हियर। probably then, probably then this is because आपका BA वाला question। uh, what does integrity mean to you? Describe any situation where you face an ethical dilemma। इंटेग्रिटी का मतलब तो पता है ना? इंटेग्रिटी का रियल हाँ। मतलब देख लेना। ठीक है, अच्छे से डिक्शनरी मीनिंग देखना और उसके बेसिस पे ही आंसर लिखना, अपने मन से मत सोचना इंटेग्रिटी का ये मतलब होता है वो मतलब होता है। एंड डिस्क्राइब अ सिचुएशन। सो इंटेग्रिटी जितना मेरे को पता है बेसिकली मीन्स की व्हाट वैल्यूज यू होल्ड, आप उससे स्टिक कर रहे हो, रादर देन लेट्स से आप ऐसे कहीं पे बोल रहे हो कि भाई मेरे को तो पैसे का मोह ही नहीं है, और कहीं पे कोई आपको 1,000 रुपये दे दिया कुछ करने के लिए और आप लेके करने लग गए, इवन दो यू डिड नॉट लाइक द वर्क यू वर डूइंग, एज एन इट वाज नॉट द वर्क यू वुड हैव डन इफ मनी wasn't involved। ठीक है, सो दैट इज यू लैक इंटेग्रिटी, आप दो जगह दो बात बोल रहे हो। सो यू हैव टू टेल कि पहली बात इंटेग्रिटी आपके लिए क्या मीन करती है, दूसरा वो सिचुएशन जहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा हालत हो गया था, आपको चूज करना पड़ा था कि यार मैं अगर अपने आप को फॉलो करूंगा तो भी लगने वाले हैं, और अगर अपने आप से दगा करूंगा तो मे भी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, बट मेरे मन में सोचूंगा यार मैं तो कितना बुरा आदमी हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, सो टफ क्वेश्चन, रिक्वायर्स यू टू इंट्रोस्पेक्ट अ लॉट, बट हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आएगा। आई विल बी very uh, up to seeing what kind of answers people write on this one। So I remember मेरे biggest dilemma was कि मेरे भाई से कुछ पैसा खो गया था मेरे प्लेटफॉर्म का, एंड आई हैड टू डिसाइड कि मैं पेरेंट्स को बताऊँ कि नहीं, या खुद से जुगाड़ करूँ। तो फिर मैंने डाला था हाउ डिड आई रिजॉल्व इट। ठीक है, सो दैट कुड बी वन थिंग जो मेरा था, बट इट्स वेरी पर्सनल। एनीथिंग विक्रांत, एनी डाउट्स?
नहीं भैया, बस वही आपका वाला पॉइंट कि जो इंटीग्रिटी है उसका मीनिंग एक्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने भी गूगल किया कई सारी वेबसाइट्स पे, आई चेक द वेरी पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ इट, फिर उसके अराउंड मैंने अपना आंसर फ्रेम किया। Good. And final, any other information that you have not mentioned? So see, this is a place, मान लो आपको कुछ डिस्कस करना है बट इतना सारा क्वेश्चन वो किसी भी ब्रैकेट में फॉल नहीं किया, दैट इज अ वेरी I would say unfortunate part first of all. Second, because there is word limit on each answer, 100 words, so you can only write limited things. तो अगर आपको किसी चीज के बारे में definitely discuss करना है and you have not mentioned it in any of the previous answers before, or maybe you have mentioned it a bit but you want it to have certain limelight, this is the place where you write it. ठीक है, यहाँ पे ये ठीक सब है। मत लिखना यार, एनी अदर इन्फॉर्मेशन में ये सब मत लिखना, कॉलेज कैसा है या ये वो या मेरा एमबीए का टीम बचपन से था। ठीक है, write anything, any information that you want to share and is relevant, you want the interviewers to see that. ठीक है, ठीक। sure. परफेक्ट। I'll just share my responses, we'll just have a quick run through, I hope that would help. ठीक है, let me know मैं Vikrant if the screen is visible. Is the screen visible? यस, इट इज Great. विजिबल। So what professional achievement are you aspiring in short and long run? शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म का आंसर कॉपी पेस्ट ही हो गया एक तरह से, बस 100 वर्ड में कर लिया मैंने कि शॉर्ट टर्म गोल बिजनेस एक्यूमेन, वर्किंग इन अ स्टार्टअप अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स, entrepreneurial जर्नी लॉन्ग टर्म है, कंटेंट क्रिएटर लाइक आई हैव बीन डूइंग एंड एजुकेट देम। why do you consider yourself suitable in management? Maybe why MBA एक तरह से ये हो गया, active participation in events during undergraduate years, तो मेरे को मैनेजमेंट स्किल्स से एक्सपोजर मिला। उसके बाद हेड ऑफ लॉजिस्टिक्स था। uh, उसके बाद मैंने शायद न्यूमरस इवेंट्स किए, उसकी वजह से मेरे को अच्छा लगा। सो आई मीन दिस आंसर कुड हैव बीन सो मच बेटर। अभी मैं देखता हूँ तो ये आंसर मैं जिंदगी में नहीं लिखता, बट हाँ, we learn through that only. I don't think this answer is something you should definitely see. Why you consider yourself suitable in management? I would have wrote it much better. Don't take any inspiration from this answer. Why MBA? ये why MBA ही है जो आपको लिखना है। Example of a creative work or innovation, हाँ, so you see marketing event, creative commercial, बॉम्बे डाइंग कंपनी विद अमिताभ बच्चन, उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, like I told, managerial traits describe a situation where you had too many things and had to prioritize, ये तो आप लोगों में है नहीं। इंसिडेंट इन योर लाइफ दैट ऑल्टर्ड योर पर्सपेक्टिव चेंज। ठीक है, सो दिस इज लाइक एथिकल डिलेमा वाला, मे बी यू कैन सी कि स्कूल में मेरे को नहीं। बुली किया जाता था और ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा टोल टेकिंग था, बट मैं एक दिन उठ के अपने लिए आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ इन द क्लास एंड थिंग्स चेंज्ड। सो अगेन यू वुड से विक्रांति आपने बोला था पर्सनल चीज़ें नहीं डालनी है, देन वाई? तो मेरा एक ही उसमें ये था, पर्सपेक्टिव था कि यार आप वही चीजें डालो जिसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। अगर इस बारे में डिस्कशन होता मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। एनी नेशनल ग्लोबल इवेंट इन लास्ट 6 मंथ्स, इट्स ऑल्सो लाइक तुम्हारा ट्रेड बिजनेस वाला जियो पॉलिटिकल वाला, तो मैंने यही डाला था, सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज से कौन सी इंडस्ट्री को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स, वेरी लाइक डायरेक्टली आई प्लग्ड इन माई, आई वॉज द फाउंडर ऑफ अ सोसाइटी इन कॉलेज, तो डायरेक्ट प्लग इन कर दिया था। सिचुएशन वेयर यू एनकाउंटर्ड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द सीनियर टीममेट, ये तुम लोग के है नहीं, तो बट हाँ, आप देख लेना इफ यू वांट टू रीड दिस आंसर। एनी अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो इसमें मैंने अपने इंटर्नशिप के बारे में डाला बिकॉज बिकॉज पहले मेरे को कहीं भी डालने का मौका नहीं मिला था। सो मे बी यू कैन राइट समथिंग एल्स, इट्स अप टू यू, बट हाँ मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये डालूंगा। I hope this helps Vikrant. You can see all these answers in this YouTube video whenever you want. Pause and just pause and do it, and you'll be able to navigate. ठीक है? Is there any other question, ओके। Vikrant, that I should be addressing? नहीं, बस यही थे। मे बी अब 2 क्वेश्चन और ऐड हो गए हैं, तो टोटल इट्स 10 क्वेश्चन नाउ। चलो, ठीक है। Thank you so much, Vikrant, for being here, and thank you so much everyone for sticking. Hope this video helped. Feel free to check out the GDPR course, and if you want reviews of your answer, just go to my Telegram channel. वहाँ पे डालना in the group. I don't really reply to DMs, or you can put in the YouTube comments as well. I'll try to reply as soon as possible. That being said, hopefully I get started once again with my YouTube journey. So thank you so much for sticking around, and I wish you all a great day. Bye bye. See you. Bye, Vikrant.